So hello all of you, namaste. So in this video we are going to study about quotes, okay, the quotes we use in strings. I have already created video on the strings and I have explained there what are the strings and how we use them or how we can uh, describe them in our Python code. So in this particular video we are going to study about the uses of the that quotes, that single quote, double quote, or we can say apostrophe, and triple quotes and their applications. Okay, there are various applications. So without wasting time, let's jump up to the topic. So here we will just revisit our topic strings. Okay, a minute we will do a minute revisit on that topic. So first of all, I know you already have studied about string in various languages. Might be you start with C, okay, or might be you start with Python, or I don't. You should not, but if you might have started with Java or C++. Okay, so come to the Python now. Yeah, because that's a more complex language to study as first language for your coding journey. So first of all, come to the point that what is a string. So I have clearly written here a string is a sequence of zero or more characters. Okay. Okay, I know that string can be empty. Okay, an empty string is something that has zero characters. Okay, and the string with more characters are obviously a string. A string begins and ends with single quote or double quotes. Okay, we already know that we have done numerous of, or we can say printed numerous of statement using this, and also we can say we have also defined variables of string data type with this single and double quotes. Okay, we already know that. The empty string has zero characters, so it can be imagined like this with the single quoted, an empty single quote, and empty double quote. We can say. So now we will jump up to our main topic of this video, that uses of quotes. Okay, just hear me clearly. You can include a single quote in a double quote string or a double quote in a single quote string. Like here, what I have written. This is some variable. Okay, so I have written here all the words a stage, all the words a stage. I have included single quote in a double quoted string. Okay, here I have included double quote in a single quoted string. Okay, here. So like it is a passive voice, and so a penny saved is a penny earned. This is a great saying. Okay, so we are not into that philosophy. Here we are going to deal with like we can use single quote in double quote string, like the first sentence and in the second sentence brain equals to, we have used double quoted, or we can say double quote in a single quote string, as simple as it. But we cannot use single quote in single quoted string and double quote in double quoted string. Okay, it's like you can use opposite things. Like you can use double quote in single quote string and single quote in double quote string, but you cannot use single quote. Okay, we can say you cannot use single quote string in a single quote, or we can say single quote in single quote string. I'm confused now. Okay, let's not confuse this topic. We'll try to understand it in the code. Okay, let's just try to understand it with the code. Yeah, here we go. So what I have printed here, it's a beautiful day. Okay, so someone will say, भाई तू इट इज अ ब्यूटीफुल डे भी लिख सकता था, नहीं बट मुझे लिखना है इट्स अ ब्यूटीफुल डे. इसमें क्या किया है मैंने, आई हैव इंक्लूडेड सिंगल कोड इन सिंगल कोड स्ट्रिंग. अब ये मुझे एरर देगा. ओके, दैट स्ट्रिंग व्हाई इट इज गिविंग मी एरर, बिकॉज इट्स होपिंग दैट, और वी कैन से वो ऐसा अंदाजा लगा रहा है. ओके, उसको इट इज इंटरप्रेटिंग लाइक स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सिंगल कोड एंड इज एंडिंग एट दिस सिंगल कोड. They are not considering this part of the sentence as a string. Okay, बिकॉज यहाँ पे उसको क्या दिख रहा है, ये अच्छा ओपनिंग कोट लिखा, उसको एक कोट दिखा, अरे हाँ स्ट्रिंग चालू हो रही है, और उसको जस्ट ईट के बाद दूसरा सिंगल कोट दिखा, उसको लग रहा है हाँ स्ट्रिंग तो खत्म हो गई मेरी. अब ये जो भी रिमेनिंग पार्ट है ये कुछ और ही है. ओके, यहाँ पे लिखा भी है अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिख रहा है. ओके, यहाँ पे मैंने वहाँ उसको ये लग रहा है ये कुछ वेरिएबल है, क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप सेव हो ही नहीं रहा है. एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप कब सेव होगा, जब इट विल स्टार्ट विद अ कोड एंड एंड विद द सेम टाइप ऑफ कोड. इफ इट स्टार्ट विद सिंगल कोड इट शुड बी एंड विद अ सिंगल कोड. इफ इट स्टार्ट विद डबल कोड इट शुड बी एंड विद डबल कोड ओनली. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई हैव यूज सिंगल कोड इन सिंगल कोड स्ट्रिंग. सो इट इज थिंकिंग दैट इट बस इतना स्ट्रिंग पार्ट है और ये कुछ और ही चीज है. ओके, क्योंकि उसका एंड मेरे पास था ही नहीं. सब अब इसको इससे स्कैप करने के लिए वी कैन व्हाई इस टॉपिक को स्कैप कैरेक्टर क्यों नाम दिया है, बिकॉज जो भी अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी जनरेट हो रही है हमारे सेंटेंस में, हम उस चीज से स्कैप करना चाहते हैं. लाइक कुछ चीज है, कुछ सेंटेंस है, या तुम कहीं से जा रहे हो बट तुम्हारे पास एक गोल्ड की प्लेट है, तो तुम उसको छुपाना चाहोगे ना, ऑफ कोर्स यू विल ट्राई टू सेव इट फ्रॉम द पीपल, और लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारे पास है. तो तुम उस टाइम क्या करोगे, एक बैग में डाल दोगे. बस उसी तरीके से मैंने क्या किया, इसको छुपाने के लिए इस सिंगल कोड को छुपाने के लिए मैंने उसको एक बैग में डाल दिया. अब उस बैग को डालने को हम इसका कैरेक्टर कहते हैं. ठीक है, अभी शो यू हाउ इट्स लाइक दिस. अभी देखो फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया. अभी उसने इस पूरे सेंटेंस को एज अ स्ट्रिंग कंसिडर किया है. ठीक है, एज अ होल स्ट्रिंग, बिकॉज आई हैव यूज्ड हियर बैकस्लैश.
ओके, अब ये बैकस्लैश क्या कर रहा है, ये सिंगल कोट को छुपा रहा है, छुपा रहा होगा वो, उसको क्या बोलते कंपाइलर को पता ही नहीं लगने दे रहा है कि वो एज अ सिंगल कोट है करके। अभी वो एज डिफाइन एज एस्केप कैरेक्टर, ये पूरा जो है ना बैकस्लैश एंड द सिंगल कोट, दिस होल कंसिडर्ड अपॉन एंड इट इज कॉल्ड एज एस्केप कैरेक्टर। ओके, दैट्स द सिंपल, वी कैन सिंपल वे आई कैन एक्सप्लेन टू यू। अभी देखो, अभी एरर नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे मैंने उसको छुपा लिया यूजिंग इसका कैरेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे मैंने क्या किया है, डबल कोटेड स्ट्रिंग में मैंने डबल कोट्स यूज कर दिए। अब क्या हो रहा है इधर मैं बता रहा हूँ, डबल कोटेड स्ट्रिंग, ओके, सो इतना पार्ट वो एक स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, ये स्ट्रिंग वो कंसिडर कर रहा है। और वो बोल रहा है हाँ, यहाँ पे फिर से मेरे को डबल कोट दिखा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड एट दिस पॉइंट इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज मुझे वहाँ पे फिर से डबल कोट दिखा। पर ये आईआईटी को वो कुछ अलग ही समझ रहा है, वो कुछ अलग एंटिटी समझ रहा है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एरर आएगा। क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगेट अ कॉमा, ठीक है, नॉट लाइक दैट। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे भी उसको छुपा लूं, मतलब जो अंदर जो यूज किया है मैंने डबल कोट स्ट्रिंग, आई वांट टू escape दैट एरर, और आई कैन से आई वांट टू बैक दैट थिंग दैट स्टफ, सो आई विल यूज escape कैरेक्टर हियर। अब देखो, अब उसने क्या किया, इस पूरे चीज को एक ये जो है ना, ये पार्ट यहाँ पे हमने दो escape कैरेक्टर्स यूज किए, दिस इज फर्स्ट वन एंड दैट दिस इज सेकंड, तो इसको छुपा लिया, उस डबल कोट्स को छुपा लिया, क्योंकि वो उसको कंसिडर नहीं कर रहा था कि ये एक सेंटेंस का पार्ट है, वो उसको बोल रहा था कि ये कुछ अलग ही सेंटेंस यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो एज अ सेंटेंस का पार्ट कंसिडर नहीं कर रहा था, दैट्स सिंपल। तो सिमिलरली इसका कैरेक्टर्स में और भी पार्ट्स आते हैं, लाइक मैं प्रेजेंटेशन में भी वही एक्सप्लेन किया हुआ आपको, ठीक है, सिमिलर थिंग, कि देखो, to put a single quote in a single quote string, precede it with the backslash और इसका character, whatever you can call it. So यहाँ पे भी वही किया है चीज, आप देख सकते हो, the same goes for double quotes. ओके, सो वही है। अभी मैं आपको एक इसका कैरेक्टर्स को, what we cannot call it इसका character, but we can call it a format character in a string, putting a format character in a string, whatever. A format character is interpreted by the print function to change the layout of the text. अब जो नेक्स्ट टू कैरेक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं, द न्यू लाइन कैरेक्टर एंड टैब कैरेक्टर, ये फॉर्मेट चेंज करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज फॉर्मेट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। इसका फॉर्मेट भाई, स्ट्रिंग का फॉर्मेट, ओके, वी विल, ओके, दिस सी हियर एग्जांपल, गुड नाइट। अभी क्या होगा ना, अगर इफ आई वांट टू प्रिंट दिस गुड नाइट एंड दिस गुड नाइट इन फर्स्ट लाइन एंड दिस गुड नाइट इन सेकंड लाइन, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ओके, यहाँ पे देखो, आई शो यू विद कोड, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सीन है, मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। सो टैब, सबसे पहले हम टैब इसका कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। तो टैब इसका कैरेक्टर्स बेसिकली वी कैन से, और वी कैन कॉल इट एज एन टैब फॉर्मेट कैरेक्टर। सो ये क्या करता है, ये स्पेस क्रिएट करता है, ऑब्वियसली द नेम सजेस्टर्स। टैब क्या करेगा, टैब क्या करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा विद इन। अब ये जो दो सेंटेंस है, माय नेम इज विधान और आई एम फ्रॉम मुंबई, ये मुझे सेपरेट करना है, मतलब उसके बीच में थोड़ा मेरे को गैप चाहिए। तो एक चीज है मैं ऐसे स्पेस दूं, या दूसरी चीज है मैं जस्ट टैब कैरेक्टर क्रिएट कर दिया। ओके, सो अभी देखो, मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, स्पेस क्रिएट हो गया, माय नेम इज विधान, दिस दो सेंटेंस की वजह से, दैट इज द यूज ऑफ टैग फॉर्मेट कैरेक्टर। अब ये क्या कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है, फॉर्मेट किसको कर रहा है, टेक्स्ट को, अंदर क्या, स्ट्रिंग को, सेंटेंस को, यू कैन से हियर। उसके बाद हम करेंगे, सीखेंगे व्हाट इज द न्यू लाइन फॉर्मेट कैरेक्टर, और इसका कैरेक्टर न्यू लाइन उसका नाम ही सजेस्ट कर रहे हैं। अभी अब सपोज कोई नूब आया, उसको क्या करना है, माय नेम इज विधान एक फर्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, उसके नीचे वाले लाइन में आई एम फ्रॉम मुंबई प्रिंट करना है। अब वो क्या करेगा, दो प्रिंट का सीक्वेंस लिखेगा, प्रिंट माय नेम इज विधान एंड प्रिंट आई एम फ्रॉम मुंबई। बट जिसको पता है कि न्यू लाइन फॉर्मेट कैरेक्टर क्या कर सकता है, वो दो एक ही इसमें, अगर तुम एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में भी अगर तुम यूज करोगे न्यू लाइन कैरेक्टर, तो वो अपने को उस कैरेक्टर के बाद का सेंटेंस नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करके देगा। सो मुझे क्या चाहिए, माय नेम इज विधान मेरे को पहले लाइन पे चाहिए, आई एम फ्रॉम मुंबई मेरे को नेक्स्ट लाइन पे चाहिए। सो आई विल सिंपली पुट हियर न्यू लाइन फॉर्मेट कैरेक्टर। So my name is Vidhan is on first line and I'm from Mumbai is on second line. So it is that easy. ये एक्टिविटी आपके लिए, ओके। और हाँ, the second thing, I will post this notebook, or we can say link of this notebook in the description. You can perform that activity by opening the link of this Colab notebook. So print it's a beautiful day. अब मुझे बताओ, ये दो चीज एरर क्यों नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल कोट में सिंगल कोट यूज किया है। उसका रीजन मुझे कमेंट्स में बताओ, या ओके, बेसिक सी चीज है, तो ये भी तुम खुद रन करके देखना कि यहाँ पे मैंने डबल कोट सिंगल कोटेड स्ट्रिंग यूज किया है। अब आते हैं, अब सिंगल कोट पता है मुझे, एक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, प्रिंट एक्स इक्वल्स टू दिस इज अ स्ट्रिंग, प्रिंट वाई दिस इज। अब मुझे, मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए सपोज मैं इस चीज को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस चीज को रन करता हूँ, प्रिंट जेड, ओके, इसको भी हटा देता हूँ अभी के लिए। सो क्या है, स्ट्रिंग को मुझे भी पता, आपको भी पता, स्ट्रिंग को ऐसे डिफाइन किया जाता है, एक तो सिंगल कोट से या डबल कोट से। अगर मुझे एक दिन चूल मच गई, ओके, कि मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग
डिफाइन करनी है यूजिंग सिंगल कोट, कर पाऊंगा क्या मैं? लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ प्रिंट साइड, जो मैंने पहले लिखा था। क्या बोल रहा है ये? अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, वो बोल रहा है कि मैं, तुमने स्टार्ट तो कर दिया भाई, तुमने टर्मिनेट कहाँ किया है स्ट्रिंग को? उसको ये समझ, ये वाला उसको दिख नहीं रहा है, वो सर्च कर रहा है इन दिस लाइन ओनली, फर्स्ट लाइन में ही वो सर्च कर रहा है कि भाई टर्मिनेटिंग कोड कहाँ पे है भाई, मेरे को दिख नहीं रहा। ओके, तो भाई पकड़ा गया। अभी इस टाइम पे हम क्या करें? सो टू डिफाइन मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ट्रिपल कोट्स कम्स टू द पिक्चर, या वी यूज ट्रिपल कोट्स हियर। ट्रिपल कोट माने कि तीन बार सिंगल कोट। अभी देखो, दैट्स द मैजिक ऑफ ट्रिपल कोट भाई। उसने मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिफाइन करना सिखा दिया अपन ने। तो ट्रिपल कोट का क्या यूज है? इट कैन यूज फॉर डिफाइनिंग मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब ट्रिपल कोट का ये और एक यूज है। अब हम कमेंट देते थे तो आई हैव यूज मेनी टाइम्स, आई हैव यूज हैशटैग फॉर कमेंटिंग। कमेंटिंग मतलब पता है यार, एक वीडियो बना के रखा है उसमें मैंने। कमेंटिंग मतलब निगलेक्ट करता है कंपाइलर, अरे भाई ये कुछ काम का ही नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोग्रामर। जब कोई वो कोड किसी और को देगा तो वो जल्दी समझ जाएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है इस एल्गोरिथम में और इस कोड में, व्हाटएवर। सो अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट देनी है, तो मैं क्या करूंगा? हैशटैग एक लाइन में कमेंट लिखूंगा, फिर हैशटैग लिखूंगा, फिर एक लाइन में कमेंट। बट मेरे को एक कमेंट 1 2 3, जो क्या बोलते हैं, मेरे को पसंद नहीं है बार बार हैशटैग देना। सो मैं क्या करूंगा? सिंपली यहाँ पे ट्रिपल कोड लिखूंगा, ठीक है? यहाँ पे ट्रिपल कोड। अब कंपाइलर इसको कंप्लीटली निगलेक्ट कर चुका है, कंप्लीटली निगलेक्ट, ठीक है? वो इसको क्या समझ रहा है? वो इसको कमेंट समझ रहा है। अभी मैं इसको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ कुछ x इक्वल्स टू विधान, ठीक है? और मैं यहाँ पे प्रिंट x लिखता हूँ, ठीक है? अब आउटपुट क्या है? विधान, आउटपुट इज विधान, बट दिस थिंग इज कमेंट। ये कमेंटेड है, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है ही नहीं, ठीक है? मैं उसमें पूरा वीडियो बना चुका हूँ। सो दैट्स ऑल। ट्रिपल कोट इज यूज फॉर what is it used for? It is used for defining multi-line strings, and it is for using multi-line comments. Okay, so that's all. We have just gone through what are the uses of star characters and what are the uses of quotes, different types of code, that is single, double, triple quotes in the Python, and their different applications. Especially the triple quote, it is very much useful. Okay. So that's all for this session. I will upload the Colab notebook link in the description. Please check it out. Okay, bye bye. See you soon in next video.